हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Importance of ocean for a human. There is a most important topic. Important of the ocean for a human. We are a well hour to the oceans is cover about 71% of the earth's surface. There is the most important for the all class students and they form a major part of our environment and have a overwhelming to the influence of human and their activity. There is the most important and this sections is will be a study the importance of ocean in the different sphere of human life. There is the most important. The first year point arrive the ocean as a modifier of climate. There is the most important. The most important part played by the ocean is a modifier of the climate. There is the first one. The ocean stores a large quantity of the heat and hence it is often called there is saving bank for the solar energy. Receiving deposit in a season of the exclusive insulations and is applying them back in the season of want. The extensive or deep water of oceans gain as well as a lose heat more slowly and then the land, and when both are subjected to the same amount of the insulations. The contrast in the temperature of the ocean and the land explain the difference in the temperature of the coastal and interior region. The second, there is ocean supply to water vapor to the atmosphere and thus are there a basic source of the all precipitation on the earth. They are also to the vital source of fresh water on the earth. There is a most important here. And the third here, the ocean current is an important regulator of temperature on the earth as a surface and they help in the exchange of a heat between the low and high altitude and still there is sustain to the global energy balance. On the local scale, the warm ocean current is bearing to the moderating influence to the coastals in a higher altitude. Cool current reduce the heat of the tropically desert along to narrow coastal belt. There is a most important. And fourth here, the influence of the ocean climate become a more clear if we consider the distribution of the pressure and prevailing winds system over the sea surface. The ocean surface has 6 or more permanent centers of high pressure and this high pressure area give a birth to be a planetary wind system over to the earth and this planetary wind is determine the amount of rainfall and its distribution over to the earth's surface and the western lights give to the rainfall on the West Europeans and the coastal after a collecting moisture from to the warm North Antarctica drift. The next here the ocean and resource. There is a most important here ocean and resource. The ocean have a way is been to the great source of food and other product of the value of man. And the animal and plant of the sea continually as a best resource from which a man can derive a food, fertilizer for agriculture and the raw materials for industries. Fish and other marine animals from a rich source of food and nutrition for a man. And with the progress of a human society and the increase of population, man has a dependent on the sea for other product as increasing. The fishes now make up to more than 10% of the total animal protein that a human consume. There is a most important here. Most important topic arrive here the ocean mineral resource. Why the ocean mineral resource? Here, the ocean are the storehouse of large number of useful metallic and non-metallic mineral. The foremost among their minerals are a petroleum deposit of the continental shelf in the energy and Hungary's world.
They are the most sought after resource. The best deposit of the petroleum has been to the found in many places such as the North Sea. Off there is the coastal of South California and Texas. There is a Mediterranean as a sea is a Persian Gulf. Mumbai High is the Arabian Sea. There is the most important. There is also important here the common salt or sodium chloride is extract from sea water. Apart from the salt, magnesium and bromines have long been extracted from the sea water. The minerals and wealth of their sea also include a metal. All the metallic elements are present in the sea water in some degree. However, the water and meditant of the oceans the heaviest saturated with such a metal and zinc, copper, leads, silver, and the gold, especially in their volcanic region of the oceans. Radius. There is a technology is for to these minerals as a not yet developed. The most significant are minerals is nodules found on the deep sea floor. There is important ones of the phosphorites and manganese is nodules. The next here, the oceans and energy. There is the most important ocean and energy. The energy resource of the oceans are various types. There is a tidal power and the geothermal energy and energy for ocean temperature. There is the most important here. Oceans is an energy source of energy. Tidal powers, geothermal energy and energy from ocean temperature. The tide energy was in use even in the 12th century. The water wheels drive by there the tides were used for the grinding grain. And today fought of began made for the harness and the energy for a run electric generator. And there is a difficulties in this use of tide power because of the irregularities of the tides. However, a few tides power station is working in the Russia, France, and China. The next here, the ocean is the transportation and trade. That is the most important here. Ocean were originally consideration of barrier, but today they act as a natural link among the continent and the national of the world. They provide to natural highways at the low cost for international trade, and they facilitate the movement of their bulk goods. The water is a by not, and there is a need for the motives. Their power oceans is the great booms to be international trade. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य के लिए महासागरों का क्या महत्व है। देखिए कई मायने में इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आता है कि मनुष्य के लिए जो है महासागरों का क्या उपयोग हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो महासागर जो है कहते हैं इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा भंडार है जिसमें हर चीज़ जो है मनुष्य के लिए उपलब्ध है। सिर्फ मनुष्य को जो है उसको खोजने की आवश्यकता होता है। अगर आप हिंदुइस्ट कहानी के रिगार्डिंग एक आप बात जानते होंगे कि समुद्र को ही मंथन करके जो है बहुत से इम्पोर्टेंट संपदा जो है सागर से निकाला गया था। तो आप समझ सकते हो कि सागर में जो है कई तरह की चीज़ें जो है छुपी हुई है और ये मनुष्य को हर समय जो है लाभांतरित करता है, चाहे आज का समय हो चाहे पुराने समय हो। दोनों समय में जो है महासागरों का अपना एक महत्व रहा है और इंसानों के लिए कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहा है। हम सभी इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित हैं कि पृथ्वी के धरातल का जो है 71% भाग सागर है और महासागरों से ये घिरा हुआ है। महासागर हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग और ये मनुष्य तथा उसके जो है कार्यकलापों पर पुण्य प्रभाव डालते हैं। कहते हैं हम मानव जो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महासागर प्रभाव के विषय में पढ़े हैं और जाने हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो है मनुष्य के लिए महासागरों का कितना महत्वपूर्ण जो है आज आधुनिक युग में है। यहाँ पर दिखाया गया है पहले पाठ के रिगार्डिंग कि महासागर जलवायु के जो है संशोधक के रूप में यहाँ दिखाया गया है। कहते हैं महासागरों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है जलवायु को संशोधित एवं परिवर्तित करना होता है। तो महासागरों का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य मनुष्य के लिए तो यही हो जाता है कि यहाँ जलवायु को ये काफ़ी प्रभावित करती है। अगर इसी बात पे हम पहली पॉइंट पे अगर नज़र डालें तो कहते हैं महासागरों की अथाह जलराशि बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा का संग्रह करती है और इसी कारण महासागरों को जो है सौर ऊर्जा का जो है बचत बैंक कहा जाता है। यानी देखा जाए तो भविष्य में जो है महासागर जो है उसका सौर ऊर्जा के रूप में एक बचत बैंक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। ये अधिक जो है सूर्य ताप वाले मौसम में इस ऊर्जा का जमा कर लेते हैं और आवश्यकता
वाले मौसम में इसका जो है भुगतान करते हैं। महासागरों का विशाल जो है गहरा जल पृथ्वी के धरातल की अपेक्षा धीरे धीरे जो है ऊष्मा अवशोषित कर लेती है और धीरे धीरे ही ये विकसित होते चली जाती है। सूर्य ताप की एक ही जो है सामान्य मात्रा जलीय धरातल की अपेक्षा स्थायी धरातल को शीघ्रता से और अधिक गर्म कर देती है। जलीय और स्थलीय तापमान में अंतर के कारण ही समुद्री तटीय क्षेत्र और जो है आंतरिक जो है स्थलीय क्षेत्रों में तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। अगर दूसरी पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं महासागर जो है वायुमंडल के जलवायु प्रदान करते हैं, यानी महासागर जो है वायुमंडल को जो है जलवाष्प के प्रदान करते हैं और यह पृथ्वी पर कुल वर्षण के लिए मूल स्रोत के रूप में जो है देखा जा सकता है। ये पृथ्वी का स्वच्छ जल का भी मुख्य स्रोत के रूप में यहाँ आती है नज़र। देखा जाए अगर हम तीसरी पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहते हैं महासागरीय जलधाराएं जो है पृथ्वी के धरातल पर महत्वपूर्ण तापमान नियंत्रण के रूप में देखा जाता है। यह जलधाराएं जो है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में ऊष्मा के विनिमय में सहायता करती है और इस तरह यह विश्व में ऊर्जा को जो है संतुलन को बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक भी है। अस्थायी सतह पर गर्म महासागरीय धाराएं उच्च अक्षांशों के तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु को जो मृत बना देती है, जबकि ठंडी जो है धाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल को तटीय क्षेत्रों के तापमान को काफ़ी कम कर देती है। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो यही दर्शाता है कि महासागर पृथ्वी पर वायु दबाव और प्रचलित पवन तंत्र के वितरण को भी बहुत काफ़ी सीमा तक नियंत्रित करती है। महासागरीय धरातल पर उच्च दबाव को जो है 6 या 6 से अधिक अस्थायी केंद्र के रूप में देखा जा सकता है और यह केंद्र जो है भूमंडलीय पवन तंत्र को काफ़ी नियंत्रित करती है, यानी केंद्रीय भूमंडलीय पवन तंत्र जो होता है वो काफ़ी इसी के ही नियंत्रण में रहता है और यह भूमंडलीय पवनें पृथ्वी के धरातल पर वर्षा की मात्रा और इसके जो है वितरण को नियंत्रित करती है। कहते पछुआ पवनें जो है गर्म उत्तरी अंटार्कटिका अफवाह को आर्द्रता ग्रहण करके जो है पश्चिमी यूरोप के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा करने के लिए जिम्मेवार होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी बात रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है महासागर तथा संसाधन। देखिए महासागर को हम संसाधन के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम प्राचीन समय में चले जाएं तो कहते हैं समुद्र मंथन से जो है बहुत सी संपदा जो है महासागर से ही निकाली गई थी, तो उस समय जो इतने भंडार निकले तो आज भी जो है मनुष्य के लिए बहुत मात्रा में जो है भंडार समुद्र में पर्याप्त है। और जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है कहते हैं आने वाला समय में जो है समुद्र का एक अपना विशेष स्थान रहेगा, क्योंकि मनुष्य के लिए आधे से अधिक जो है भोज्य पदार्थ जो है हमें समुद्र से ही प्राप्त होगा। तो महासागर एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं मानव के लिए महासागर खाद्य पदार्थ तथा अन्य जो मूल्यवान वस्तुओं के लिए हमेशा से ही बड़े स्रोत रहे हैं। समुद्री पौधे और जीव जंतु मिलकर एक विशाल संसाधन है जिनसे मनुष्य के खाद्य सामग्री, कृषि के लिए उर्वरक तथा कई उद्योग के लिए कच्चे माल हमें यहीं से प्राप्त हो जाती है। मछली और अन्य समुद्री जीव जो है जंतु मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग भी रहे हैं। मानव समाज की उन्नति और बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुष्य की महासागरों पर निर्भरता बढ़ती ही चली जा रही है। अब पूरे संसार में आज मछली मनुष्य को भोजन के कुल जंतु प्रोटीन का 10% भाग जो है समुद्र से ही प्राप्त होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है महासागर और खनिज संसाधन। देखिए महासागर में खनिज का क्या यहाँ पर स्थिति है। कहते हैं महासागर अनेक उपयोगी धात्विक और अधात्विक खनिजों के भंडार के रूप में देखा गया है। महाद्वीपीय जो है निर्गमन तट के खनिज तेल भंडार महासागर में पाए जाने वाले सबसे खनिज से महत्वपूर्ण है। यानी आपको पता ही है कि जो यहाँ पर सबसे अधिक खनिज तेल भंडार है जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आज के समय में जो ये खनिज तेल जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन महासागर जो है ये खनिज के रूप में देखा जा सकता है। आज ऊर्जा के भूख विश्व में जो है खनिज तेल की सबसे अधिक मांग है, क्योंकि सबसे अधिक खपत होती है तो वो होती है खनिज तेल की, जो पूरे विश्व के लिए जो है काफ़ी संकट का विषय माना जा सकता है। खनिज तेल के विशाल भंडार उत्तरी सागर, दक्षिण कैलिफोर्निया के तट पर जो है भूमध्य सागर, फार्स की खाड़ी और अरब सागर में मुंबई हाईवे में काफ़ी मात्रा में देखने को मिला है। साथ में अगर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बात यहाँ करें हम तो वो है साधारण नमक की। कहते हैं ये साधारण नमक जो सोडियम क्लोराइड के रूप में समुद्र के जल से ही प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम एवं ब्रोमीन बहुत समय से समुद्र के जल से प्राप्त किए जाते रहे हैं और समुद्र के जल में सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। लेकिन समुद्र के जल और
जो है तलछट में जो है जिंक, तांबा, चांदी और सोना काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये धातु मुख्य रूप से महासागरीय पहाड़ियों के ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है और इन खनिजों के समुद्री जल से निकलने की तकनीकी अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। कहते हैं तकनीक की कुछ खामियों के कारण जो है इन चीज़ों को जो है अभी तक समुद्र से निकालना संभव नहीं हुआ है। महासागरों के जो है अधस्थल में पाए जाने वाले मुख्य खनिज जो है मैग्नीज और फास्फोराइड जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाने वाले तत्व के रूप में देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो इंसानों की जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, तो वो जो है समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों में से एक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष महासागर और ऊर्जा। देखिए महासागर को ऊर्जा के रूप में भी देखा जा सकता है। महासागर में ऊर्जा संसाधन विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और महासागरीय जल के तापमान से प्राप्त ऊर्जा। कहते हैं 12वीं शताब्दी में भी ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। उस समय गेहूं पीसने के लिए ज्वारीय ऊर्जा से चलने वाली चक्की का प्रयोग किया जाता था और आजकल जो है विद्युत केंद्र में इस ज्वारीय शक्ति का प्रयोग करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और कई जगहों पर तो सफलता भी मिल चुकी है। किंतु ज्वारीय शक्ति के प्रयोग में कुछ समस्याएं अभी भी खड़ी है, जैसे ज्वार भट्टा क्रम जो है नियमित नहीं होती, क्योंकि आपको ने पढ़ा है कि ज्वार भट्टा जो आता है पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही आती है। फिर भी रूस, फ्रांस और जो जापान में ज्वारीय शक्ति के कुछ केंद्रीय सफलतापूर्वक कार्य अभी भी कर रहे हैं और इनका अनुसंधान जो है बहुत जल्दी सफल भी होने वाला है। महासागरों में भूतापीय ऊर्जा उन स्थानों से प्राप्त की जा सकती है जो सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का भविष्य में व्यापक उपयोग संभव है, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा ही हमारे पास शेष रह जाएगा, क्योंकि तेल पेट्रोलियम जो है ख़त्म हो चुका है। भूतापीय ऊर्जा का विकास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, मेक्सिको और न्यूजीलैंड में कर लिया गया है और यह भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा संकेत के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है महासागरीय परिवहन तथा व्यापार के लिए। देखिए जो है महासागर को हम परिवहन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। कुछ वर्ष पहले तक महासागर महाद्वीपों के एक दूसरे से पृथक करने वाले अवरोध माने जाते थे, लेकिन अब ये उनके बीच परस्पर संबंध की कड़ी समझे जाते हैं और वो कम कीमत पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराते हैं और ये भारी वस्तुओं को जो है लाने ले जाने में सहायक भी है। जल विवाहक होते हैं और इसे क्रम प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है। अंत महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। तो देखा जाए तो महासागर के यहाँ पर बहुत ही मानव के लिए उपयोग जो है सिद्ध हो रहा है। तो महासागर जो है आने वाले भविष्य में भी मनुष्य को कई तरह से जो है लाभांतरित कर सकते हैं।